آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ مصر کے ایک بازار میں ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کی جھولی میں کچھ سکے اور اس کے ہاتھوں میں اکثر ایک پرانی لکڑی کی چھڑی ہوا کرتی تھی۔ آنکھوں سے نابینا ہونے کے باوجود اس کی باتوں اور اس کی گفتگو میں ایک کشش تھی۔ لوگ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ فقیر تو نابینا ہے لیکن اس کا دل بہت روشن ہے۔ وہ فقیر ہر آنے جانے والے لوگوں کو دعائیں دیتا اور اس کی باتوں میں کچھ ایسا اثر ہوتا کہ لوگ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتے جاتے۔ اسی بازار میں اکثر ایک نوجوان تاجر گزرا کرتا تھا جس کا نام یونس تھا۔ یونس ہر روز فقیر کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ اندھا فقیر یہاں کیسے رہتا ہے۔ ایک دن یونس اسی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس فقیر کو دیکھ کر اپنے جذبات قابو نہ کر سکا اور فقیر کے پاس جا بیٹھا۔ یونس نے کہا، بابا کیا آپ کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا آنکھوں سے نظر نہ آنا اور بات ہے لیکن دل کا اندھا ہونا اور بات ہے۔ یونس فقیر کی اس بات پر حیران ہوا اور پوچھا، آپ کے دل میں کیا نظر آتا ہے؟ فقیر نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے کہا، میرا دل مجھے راز کی بات بتاتا ہے لیکن ہر راز ہر کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ سن کر یونس کے دل میں اور کئی سوالات اٹھنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک فقیر کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو اس نے چھپا رکھا ہے۔ اسی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ بازار میں ایک اجنبی شخص آیا جو فقیر کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب بھی تھی۔ اس اجنبی نے کتاب فقیر کی جھولی میں رکھی اور بغیر کوئی بات کیے واپس چلا گیا۔ یونس یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کتاب کون سی ہے اور اس کا اس فقیر سے کیا تعلق ہے۔ فقیر نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور آہستہ سے بولا، وقت آ گیا ہے۔ یونس کو اس جملے نے اور بھی الجھا دیا۔ یونس نے پوچھا، کون سا وقت آ گیا ہے بابا؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ فقیر نے یونس کی طرف رخ کیا اور کہا، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ جانا، لیکن یاد رکھو جو راز تمہیں معلوم ہوگا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ یونس کی پوری رات بے چینی میں گزری۔ وہ سوچتا رہا آخر فقیر کے پاس کون سا راز ہو سکتا ہے۔ یونس پوری رات اسی بات کو یاد کرتا رہا کہ آخر فقیر نے ایسا کیوں کہا جو میری زندگی بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھا اور جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا اور بازار سنسان پڑا ہوا تھا۔ یونس نے فقیر کو اسی جگہ پایا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ آج فقیر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ فقیر نے یونس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، آ گئے تم؟ یونس نے بے صبری سے کہا، بابا میں آپ کے راز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اپنی جھولی میں سے وہی پرانی کتاب نکالی جو کل اس اجنبی نے اسے دی تھی۔ یہ کتاب کسی عام انسان کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اس میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو نہ صرف تمہاری بلکہ مصر کے بہت سے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ یونس نے حیرانی سے پوچھا، کیسی شرط؟ فقیر مسکرایا اور کہا، جو کچھ بھی اس کتاب سے تم حاصل کرو گے وہ صرف اور صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے کرو گے، اپنی لالچ کے لیے نہیں۔ یونس نے فقیر کی بات پر غور کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کتاب کو صرف نیکی کے لیے استعمال کرے گا۔ فقیر نے کتاب کھولی اور یونس کو پہلی بار کتاب کے اندر چھپے راز بتائے۔ کتاب کے پنوں پر عجیب و غریب نقشے اور علامت بنی تھی۔ فقیر نے یونس کو بتایا کہ یہ دراصل مصر کے قدیم خزانے کا نقشہ ہے جنہیں صرف خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خزانہ وہ ہے جو مصر کے غریب اور ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا تھا لیکن صدیوں پہلے اسے چھپا دیا گیا۔ فقیر کی بات سن کر یونس نے پرجوش ہو کر کہا، کیا ہم یہ خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ فقیر نے یونس کی بات سن کر اپنا سر ہلایا اور کہا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سفر میں تمہیں کئی تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تمہیں اپنی نیت اور ارادے کا ثبوت دینا ہوگا۔ یونس نے دل ہی دل میں سوچا، چاہے جو بھی ہو وہ یہ خطرہ مول لے گا۔ فقیر نے یونس کو پہلا اشارہ دیا۔ مصر کے شمال میں ایک کنواں ہے جو اب خشک ہو چکا ہے، وہیں سے یہ سفر شروع ہوگا، لیکن یاد رکھو ہر قدم پر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یونس نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ فقیر کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کیا صحیح میں خزانہ وہاں موجود ہے۔ جب یونس کنویں کے پاس پہنچا تو اسے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔
कुएं के इर्द गिर्द कई पुराने सुतून थे जिन पर खुफिया नुकूस बने हुए थे। यूनुस ने किताब निकाली और इन नुकूस का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। अचानक एक शख्स जो मुसाफिर लग रहा था वहां आया और यूनुस को देखकर रुक गया। मुसाफिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूनुस ने सोचा क्या इसे हकीकत बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन इससे पहले कि यूनुस जवाब देता, मुसाफिर ने अपने कमीज के नीचे से एक खंजर निकाला और कहा, जो कुछ भी तुम यहाँ ढूंढने आए हो मुझे दे दो। यूनुस समझ गया कि ये सफर खजाना तलाश करने का नहीं बल्कि साथ ही अपनी जान बचाने और नेक नीयत का साबूत देने का भी है। यूनुस ने मुसाफिर की आंखों में लालच और खंजर की चमक में खतरा देखा। वो जानता था कि ये आजमाइश का पहला कदम है, लेकिन यूनुस घबराया नहीं। जल्दी से जवाब दिया, दोस्त मैं यहाँ कुछ ढूंढने नहीं आया, बस एक पुरानी कहानी की सच्चाई जानने आया हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। मुसाफिर ने कुछ देर सोचा और खंजर नीचे कर लिया और पूछा, कौन सी कहानी? यूनुस ने कहा, एक बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे बताया है कि यहाँ मिस्र के पुराने दिनों की निशानियाँ मौजूद है, मैं उन्हें देखने आया हूँ। मुसाफिर ने थोड़ा शक किया लेकिन फिर बोला, ये जगह वैसे भी खुश्क और बेकार है, मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। यूनुस ने सुकून की सांस ली और कुएं के इर्द गिर्द बने नुकुस का दोबारा जायजा लेने लगा। किताब की मदद से उसने जल्द ही समझा कि नुकुस किसी खास बात पर सायों के जरिए रास्ता बताते हैं। सूरज की रोशनी देखते हुए यूनुस ने अंदाजा लगाया कि वह साय जिस सिमत में पड़ रहा है वही अगला कदम हो सकता है। यूनुस नुकुस के मुताबिक सुमाल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह पुराने मिस्र के खूबसूरत मनाजिर देखता रहा, मिट्टी के मकानात, बाजारों की हलचल और बुलंद मीनारे। लेकिन यूनुस को जल्द ही ये एहसास हुआ कि वह एक सुनसान इलाके में दाखिल हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी और तेज हवा की सरसराहट थी। कुछ देर चलने के बाद यूनुस को एक पुरानी मस्जिद नजर आई। वह समझ गया कि ये अगला इशारा है। उसी मस्जिद के दरवाजे पर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो अपने दिल की रोशनी से देखता हो। यूनुस ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। वह थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसके दिल में आया कि शायद आजमाइश ईमान की है। उसने वहाँ नमाज अदा की और दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा। दुआ के बाद उसने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की। हैरत की बात थी कि दरवाजा आसानी से खुल गया। मस्जिद के अंदर एक गहरे कुएं की तरफ सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। यूनुस ने हिम्मत की और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां लंबी और अंधेरी थी लेकिन यूनुस ने हार नहीं मानी। जब वह नीचे पहुंचा तो एक बड़े कमरे में एक बड़ा संदूक नजर आया। संदूक के ऊपर एक और तहरीर थी, जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा, जो सच्चाई को अपनाए उसे सब कुछ मिलेगा। यूनुस ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन अचानक उसे फकीर के वो अल्फाज याद आए कि ये सफर नियत और इरादे का इम्तिहान है। यूनुस ने सोचा, क्या उसका दिल वाकई खालिस है? संदूक के खोलते ही यूनुस के सामने सोने और चांदी के सिक्के और एक पुराना कागज जाहिर हुआ। कागज पर कुछ लिखा था लेकिन यूनुस ने सबसे पहले खुद को पुरसुकून किया और अपने इरादे को जांचा और खुद से कहने लगा, ये खजाना मेरा नहीं है, ये मिस्र के गरीब लोगों का है। कागज पर लिखा था, ये वो खजाना है जो जरूरतमंदों के लिए रखा गया है। अगर तुमने इसे बांटने का अहद किया है तो ये तुम्हारा है, अगर नहीं तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यूनुस ने दिल में ये अहद किया कि वो इस खजाने को गरीबों में जरूर बांटे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फैसले का अंजाम क्या होगा। यूनुस ने खजाने की तहरीर को गौर से पढ़ा और सोचने लगा कि क्या वाकई कोई इस वादे को पूरा कर पाएगा। अचानक इसे कमरे में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। यूनुस, ये खजाना एक अमानत है, इसे अपनी नीयत के मुताबिक बांटना। अगर तुमने अपने वादे से मुंह मोड़ा तो ये सब खाक हो जाएगा। यूनुस ने सर झुकाकर कहा, मैं अपनी नीयत साफ रखूंगा और इस अमानत को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके अल्फाज के साथ ही कमरा रोशनी से जगमगाने लगा। संदूक खुद ब खुद बंद हो गया और एक चमकता हुआ निशान इसके ऊपर जाहिर होने लगा। यूनुस समझ गया कि ये खजाना अब महफूज है और वह इसे ले जा सकता है। सीढ़ियां चढ़कर बाहर आने पर यूनुस ने देखा कि मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका बिल्कुल बदल चुका है।
पहले जो जगह सुनसान थी अब वहाँ लोगों की चहल पहल है। करीब ही एक बड़े बुजुर्ग जिनका चेहरा हिकमत और सुकून से चमक रहा था यूनुस के पास आए और कहा, बेटा तुमने अपनी अकल और ईमान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये खजाना मिस्र के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रखा गया था, लेकिन अब तुम्हें इसके रखवाले के तौर पर चुना गया है। यूनुस ने सर झुकाया और कहा, लेकिन अकेला इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी नीयत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, अल्लाह तुम्हें मददगार अता करेगा। यूनुस ने खजाने को एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर रखा और शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने फकीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर न आया। यूनुस ने सोचा कि शायद वो फकीर कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। मिस्र वापस पहुंचकर यूनुस ने सबसे पहले एक जगह पर गरीबों और मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम किया। इसके बाद उसने मजदूर और यतीम बच्चों के लिए काम शुरू किया। जल्द ही उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग खुद उसके साथ शामिल होने लगे और उसके काम में हाथ बटाने लगे। लेकिन हर कामयाबी के साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ती जा रही थी। शहर के कुछ लालच और बददयानतदार लोग यूनुस के काम में रुकावट डालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने शहर के हुक्मरान को उकसाया कि यूनुस को खजाने के बारे में सवालात करें कि इतना खजाना यूनुस के पास कहां से आया। एक दिन शहर के काजी ने यूनुस को बुलवाया और बड़े सख्त लहजे में पूछा कि ये खजाना तुम्हारे पास कहां से आया है? क्या तुम जानते हो कि ये गैर कानूनी है और तुम बगैर इत्तला के इतना बड़ा माल अपने कब्जे में लिए बैठे हो? यूनुस ने सुकून से जवाब दिया, ये खजाना मिस्र के उन लोगों की अमानत है जिन्हें मदद की जरूरत है। मैंने ये माल जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसे गरीबों में बांट रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे कामों का जायजा और मुआयना कर सकते हैं। काजी ने यूनुस के कामों की जांच करवाई और रिपोर्ट मिलने पर हैरान हो गया। काजी को पता चला कि यूनुस ने इन खजाने का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किया है। यूनुस ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। काजी ने न सिर्फ यूनुस को बेगुनाह करार दिया बल्कि इसकी इस खिदमत के लिए इसे शहर का अमीन होने का खिताब भी अता किया। लेकिन यूनुस के दिल में एक सवाल हमेशा मौजूद रहा कि आखिर वह फकीर कौन था। एक रात ख्वाब में यूनुस ने फकीर को देखा जो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि यूनुस, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमान के रास्ते पर साबित कदम रहना हर आजमाइश में कामयाबी का मयार है। यही खजाना तुम्हारी असल आजमाइश थी और तुमने इसे बगैर किसी लालच के इसे अपनी सही मकाम तक पहुंचा दिया। सुबह यूनुस ने अपने काम को मजीद बढ़ाने का इरादा किया और अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की खिदमत में लगा दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नीयत साफ और इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी आजमाइश इंसान को शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।